A very good morning to all my lovely Patans. So, I am back with your computer class and today we'll start a new chapter. Yes, chapter 7, word editing and formatting. So, in this chapter we'll learn how to use the Microsoft Word. Okay. So, everyone just take out your books, open page number 69. So, now let's start the chapter. So this is your chapter 7, word editing and formatting. Okay. So Word, we also call it Microsoft Word, and it is one of the most popular word processing program. Microsoft Word क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग एंड सेविंग अ डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग करते हैं, उसको सेव करते हैं. एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डिफरेंट फीचर्स. ये हमें अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करता है, लाइक इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिजॉरस, फाइंड एंड रिप्लेस, बुलेट्स एंड नंबरिंग, inserting image, shapes and others. So these all features we are going to learn in this chapter and chapter 8, that is also related to your Microsoft Word. So you can see here, this is your project mobile computer. So when we'll do this chapter, इस पूरे complete chapter में हम ये project create करेंगे. This chapter and the next chapter we are going to create this प्रोजेक्ट. जैसा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वैसा ही हम क्रिएट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में. पिक्चर्स थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, बाकी सब सेम होगा. ओके. सो नाउ टर्न द पेज. फर्स्ट इज़ एंटरिंग टेक्स्ट. सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टेक्स्ट कैसे एंटर करते हैं. So now first of all I'll tell you how to open Microsoft Word. आपको ऑलरेडी पता भी है because in class 3rd we have done about Microsoft Word, introduction to Microsoft Word. Okay, 2010 ये हमने किया था chapter. So I'll again tell you how to open the Microsoft Word. Okay, so let's start. So this is your desktop screen. Okay, so there are different methods to open Microsoft Word. अलग अलग methods हैं. One is if you are having the word icon on the task bar. अगर task bar पे आपके पास word icon available है, वहाँ से आप open कर सकते हैं. Just you need to bring the mouse pointer on it. This is the mouse pointer, the small arrow. Bring it over this word icon. Okay, and then click it. So now your Microsoft Word will open. Okay. Now you can see this small blinking line. We call it insertion point. Okay. So abhi for right now I am closing it from the this close button. Now another method to open Microsoft Word, click on the start button. If you are having the icon on the start menu, then you can click here and you can open, or just move to the Microsoft Office folder, click on drop down arrow, scroll down and there you can find Microsoft Word 2007, click on it and it will open. Okay, so again you can see this small blinking line here. Okay, so the text you type will appear wherever this insertion point or this cursor flashes on your screen. जहाँ कहीं पे भी आपको ये cursor, ये insertion point नज़र आएगा, वहीं पे आप text type कर सकते हो. Okay. So type the text for your document by pressing the keys on the keyboard.
सो जो भी टेक्स्ट हम टाइप करेंगे इट विल अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस कर्सर. ओके, like I am writing here mobile computer. I have written, will make it size 14. So select the text, click on the font size and select 14. Okay, now press the enter key to move the cursor to the next line. Okay, now we'll make that project here. जो आपको मैंने अभी शो किया था वो प्रोजेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे. So we'll write here a mobile computer is a computer so like that you have to write that complete text which is given in your book. So you have to type this text. जो text आपको यहाँ पे शो हो रहा है पेज नंबर 70, फर्स्ट पिक्चर, this second picture. So you have to type this complete text. ये पूरा text आपको type करना है. Okay, and then we'll go to the next topic. Okay, so as we type you will see some words are underlined here with red and green color because these words automatically underlines मिसस्पेल्ड वर्ड. जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, आप कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो या कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो ऑटोमेटिकली उनको वो अंडरलाइन कर देता है. इफ़ देयर इज़ एनी स्पेलिंग मिस्टेक इट विल अंडरलाइन विद द रेड वेवी लाइन. अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो रेड वेवी लाइन आएगी नीचे, और अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ग्रामेटिकल एरर है तो ग्रीन वेवी लाइन आएगी. ओके, सो लेट्स टाइप दिस टेक्स्ट फर्स्ट. So you can see here I have typed all this text and you can see there are two mistakes and two red wavy lines you can see here. So when you will type this text आपको ये करेक्शन नहीं करनी है. जैसे एज इट इज़ आपको बुक में गिवन है आपको एज इट इज़ टाइप करना है. ओके, एंड यू कैन सी दिस एम्परसेंड साइन हेयर. सो ये एम्परसेंड टाइप आप कैसे करोगे? लाइक आपका कर्सर यहाँ पे है. सो आई एम शोइंग हाउ यू विल टाइप. सो यू कैन सी हेयर दिस इज़ द अपर कैरेक्टर. तो जितने भी ये ऊपर वाले कैरेक्टर्स आप देख रहे हो इनको टाइप करने के लिए हम शिफ्ट की यूज़ करते हैं. तो यू हैव टू होल्ड द शिफ्ट की एंड नाउ यू हैव टू प्रेस दिस एम्परसेंड. सो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपका ये साइन आ जाएगा. आप विदाउट शिफ्ट की करेंगे तो आपका इस की से सिर्फ 7 प्रेस होगा. देखो, सो टू टाइप द अपर कैरेक्टर्स यू हैव टू यूज़ शिफ्ट की. ओके, और ये आपको जस्ट एंटर की प्रेस करनी है और टाइप करना है. अगेन प्रेस द एंटर की, टाइप दिस वर्ड, अगेन प्रेस द एंटर की, टाइप दिस वर्ड, लाइक दैट you have to type. Okay, so now one more thing, if you want to give more than one space between the words, अगर आपको एक से ज़्यादा स्पेस देना वर्ड्स के बीच में, so for that you can use tab key. You can see here is your tab key. so अगर आपको एक से ज़्यादा स्पेस देना है वर्ड्स के बीच में, नंबर्स के बीच में, so you can use the tab key. Okay, now next you can see here the next topic is editing text, यानी कि टेक्स्ट में चेंजेस करना. फर्स्ट इज़ मूविंग एंड कॉपिंग. देखो, मूविंग का मतलब होता है कट करना. तो टेक्स्ट को, कोई भी टेक्स्ट, यहाँ से हम कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट करके उसको कट कर सकते हैं और उसको दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं. तो वी कैन select any of this text, we can cut it or we can copy it from one location to another. इसी डॉक्यूमेंट में हम इनको कट कॉपी कर सकते हैं
या फिर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं। ओके, सो मूविंग अ टेक्स्ट मीन्स कटिंग अ टेक्स्ट। जैसे हम कोई पार्ट कर देते हैं न्यूज़पेपर का, या आप कोई भी ड्राइंग बनाते हो, आप उसमें कोई कटिंग करते हो तो वो क्या होता है, अलग हो जाता है ना, वहाँ से रिमूव हो जाता है। कट मीन्स कि बिल्कुल वो पार्ट अलग हो गया। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मूविंग अ टेक्स्ट मीन्स द टेक्स्ट विल डिसअपियर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन एंड अपीयर एट अनदर लोकेशन वेयर इट इज़ पेस्टेड। तो ओरिजिनल लोकेशन से रिमूव हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, और नई लोकेशन पे जहाँ हम उसको पेस्ट करेंगे वहाँ आपको वो विजिबल होगा। ओके, फॉर एग्जांपल ये आपका मोबाइल कंप्यूटर, आपको हेडिंग नज़र आ रही है, आपको इसको सिलेक्ट करना है। सो सिलेक्ट करने के लिए कर्सर को आप स्टार्टिंग पे क्लिक करेंगे, कर्सर आ गया। नाउ प्रेस द लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करके रखना है और इस टेक्स्ट के ऊपर से ड्रैग कर दो एंड देन रिलीज़ द बटन। देखो अब ये सिलेक्ट हो गया है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़, यू कैन सी हियर, दिस इज़ द क्लिपबोर्ड ग्रुप। ये आपका होम टैब है। होम टैब के अंदर हमारे पास क्लिपबोर्ड ग्रुप, फ़ॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप एंड एडिटिंग ग्रुप हमारे पास होता है। ओके, सो यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप में हमारे पास कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन है। तो अभी हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है, हम उसको कट करेंगे। कट करना कि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं। तो फर्स्ट यू नीड टू सिलेक्ट द टेक्स्ट। नाउ क्लिक ऑन दिस कट ऑप्शन। देखो जैसे ही कट पे क्लिक किया, आपका यहाँ से जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया था वो डिसअपियर हो गया, रिमूव हो गया है। नाउ click anywhere here in this document. Suppose I am clicking यहाँ पे, मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करना चाहती हूँ। तो अभी क्लिपबोर्ड ग्रुप में हम देखेंगे तो पहले क्या था, पेस्ट ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं हो रहा था क्योंकि हमने कोई भी चीज़ कट या कॉपी नहीं करी थी। जब तक आप कोई चीज़ कट या कॉपी नहीं करोगे, आपका पेस्ट बटन जो है वो हाईलाइट नहीं होगा। तो अभी हम कट कर चुके हैं तो पेस्ट बटन आपका यहाँ है, तो इस पेस्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे। अब देखो जहाँ पे हमने क्लिक किया था ये आपका मोबाइल कंप्यूटर यहाँ पे अपनी नई लोकेशन पे आ गया है। ओके, सो the text will appear in the new location. Okay, new location पे आ गया है। In the same way, now I want कि ये मोबाइल कंप्यूटर जो है स्टार्टिंग में था, ये यहाँ पे भी रहे और मुझे ये जहाँ पे ये हेडिंग पे था वहाँ पे भी मुझे चाहिए। तो what we need to do, हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, we'll select it. Now we'll click on the copy option. Copy option पे क्लिक करेंगे। Now so you have to click on the copy button. Copy option पे आप क्लिक करेंगे। Now you will notice that this selected text will not disappear. ये selected text जो हमने select किया है text, जैसे हम copy ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये disappear नहीं होगा जैसे cut ऑप्शन में हो रहा था। देखो ये as it is है। तो टेक्स्ट कॉपी करने का मतलब क्या है कि वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे भी रहता है जहाँ पे वो था, और अपनी नई लोकेशन पे भी वो पेस्ट हो जाता है। तो अभी हम इसकी नई लोकेशन पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे एंटर किया, कर्सर को ऊपर लेके गए अप एरो से। नाउ अगेन विल क्लिक ऑन द पेस्ट बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। सो नाउ यू कैन सी हमारा पेस्ट हो गया है। तो यहाँ पे भी है हमारा मोबाइल कंप्यूटर और यहाँ पे भी है। सो दिस इज़ कॉपिंग द टेक्स्ट। सो कॉपिंग अ टेक्स्ट मीन्स द टेक्स्ट विल रिमेन एट इट्स ओरिजिनल प्लेस एंड ऑल्सो अपीयर एट द प्लेस वेयर इट इज़ पेस्टेड। तो ओरिजिनल प्लेस पे भी रहेगा और जहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया है वहाँ पे भी ये शो होगा। सो इसे कहते हैं कॉपी करना। ओके, सो देखो कॉपी मैंने आपको यहाँ क्लिपबोर्ड ग्रुप से कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शन बताए हैं, हम वहाँ से भी कर सकते हैं
इसके अलावा आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। कट करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स, आपकी कंट्रोल की और साथ में एक्स। तो आपको जस्ट पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, लाइक आई विल शो यू। यहाँ पे ई रीडर हमने सिलेक्ट किया। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस द कंट्रोल एंड एक्स टुगेदर एंड सी हेयर, देखो कट हो गया। नाउ पेस्ट करने के लिए विल यूज़ द शॉर्टकट की, सो विल प्रेस कंट्रोल प्लस वी। सो हेयर इज़ कंट्रोल एंड हेयर इज़ वी। नाउ यू विल सी, देखो दोबारा से आ गया। सो पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वी और कट करने के लिए होती है कंट्रोल प्लस एक्स। इन द सेम वे अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी। सो आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो, क्लिपबोर्ड से कमांड्स यूज़ कर सकते हो, या फिर वन मोर मेथड, सिलेक्ट द टेक्स्ट। नाउ राइट क्लिक ऑन द टेक्स्ट, राइट माउस बटन आप प्रेस करोगे, सो यू कैन सी द कट कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन हियर। आप यहाँ से भी इनको यूज़ कर सकते हो। कट पे क्लिक करोगे, देखो रिमूव हो गया। नाउ यहीं पे राइट क्लिक करोगे जहाँ कर्सर है और क्लिक ऑन द पेस्ट, दोबारा से वहीं पे हमारा पेस्ट हो गया। ओके, सो यू कैन यूज़ एनी ऑफ द मेथड, शॉर्टकट मेथड and this clipboard commands method, or you can use the right mouse click after selecting the text. Okay, now the next topic is inserting text in document. कई बार क्या होता है, like we have typed this document, हमने ये document टाइप किया है and we need to add some more text in it, हम इसमें और ज़्यादा text ऐड करना चाहते हैं। So what we can do, we have to just place this insertion point, जहाँ पे भी हमें टेक्स्ट ऐड करना है डॉक्यूमेंट में, हमें जस्ट इस कर्सर को, इंसर्शन पॉइंट को वहाँ पे लेके जाना है एंड आफ्टर दैट वी कैन टाइप द टेक्स्ट। लाइक I'll show, I'll place this cursor here at the beginning of this mobile computer. Now I'll type the text here, types of mobile computer. So I'll type here types of mobile computer. I have typed this. So this way you can insert any text. Insert means इसके अंदर टाइप करना, डॉक्यूमेंट के अंदर टाइप करना, या इंसर्ट जैसे आगे हम पिक्चर्स भी इंसर्ट करेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर्स ऐड करना। ओके, एंड टू गिव द स्पेस we have to use the space bar key. The longest key of the keyboard is your space bar key. So to give space we need to use the space bar key. ओके, और जहाँ पे भी हम टाइप करेंगे आप नोटिस करेंगे कि जो आपका टेक्स्ट है जो ऑलरेडी पहले से टाइप हो रखा है वो राइट साइड को शिफ्ट होता चलेगा। जैसे हमने ये टाइप किया तो ये आपका जो मोबाइल कंप्यूटर था ये राइट साइड को शिफ्ट हो गया। ओके, सो दिस वे वी कैन इंसर्ट द टेक्स्ट एनीवेयर। हम लाइंस के इन बिटवीन भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जस्ट आपको ये कर्सर यहाँ पे प्लेस करना है एंड देन यू कैन टाइप, बिकॉज आपका टेक्स्ट वहीं पे आप टाइप कर पाओगे जहाँ पे ये कर्सर होगा, इंसर्शन पॉइंट होगा। ओके, एंड ऑल्सो देर आर डिफरेंट वेज टू सिलेक्ट द टेक्स्ट। अपडेट योर नॉलेज। So to select the text using keyboard, press and hold the shift key while pressing arrow key. So अगर आपको कीबोर्ड से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट की को प्रेस करेंगे एंड कीप प्रेसिंग द एरो कीज़। अगर आपको लेफ़्ट साइड का टेक्स्ट सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ लेफ़्ट एरो की प्रेस करें। अगर राइट साइड का टेक्स्ट सिलेक्ट करना है कर्सर के तो आप शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करें। And you can also press shift plus CTRL to select several words in a row.
सो एक रो में अगर आपको काफ़ी सारे वर्ड सेलेक्ट करने हैं तो शिफ्ट के साथ आप कंट्रोल की भी प्रेस कर सकते हैं. ओके. इफ़ यू प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट प्लस कंट्रोल की while pressing the right arrow key 5 times, you select 5 consecutive words to the right of the insertion point. सो आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल की को प्रेस करके और उसके साथ जब राइट एरो की 5 टाइम प्रेस करेंगे तो उसके कंसेक्यूटिव 5 वर्ड्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे. दिस आई विल शो यू. So you can see the cursor is at the beginning of this line. Now I'll press the shift key. You can see shift key, control key और साथ में मुझे प्रेस करना है right arrow key. So I'll press the right arrow key 5 times and see what happens. See, one word, second word, third, 4, 5. तो मैंने 5 टाइम राइट एरो की प्रेस की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल की के साथ, तो आपके कंसेक्यूटिव 5 वर्ड्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे. सो अगर आपको पूरी कंप्लीट लाइन सेलेक्ट करनी है तो आप शिफ्ट प्लस एरो को प्रेस करके रखें एंड कीप प्रेसिंग द राइट एरो की. ओके. सो दिस वे ऑल्सो यू कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. ओके. सो एवरीवन, especially those who are having computer or laptop at their homes, just do the practice of this. Type this text in the Microsoft Word and save it with the name Mobile Project 2021. Okay, Mobile Project 2021 से आप इसको सेव करेंगे and read page number 69, 70 and 71. Okay, I am also going to save it. So click on this save button which is available on the quick access toolbar. Your save as dialog box will open here. Now from this navigation pane you have to select where you want to save it. So click on the desktop. I want to save it here. So I am writing project Mobile Computer 2021 and then click on save button. जहाँ पे भी आपको सेव करना है उसको सेव कीजिए, select कीजिए and then type the name. You can see here Project Mobile Computer 2021. Okay. So everyone, read these pages and if you have any doubt, any query, just underline it in your book with the pencil. Okay. Till then, take care. Stay safe, stay home. Thank you.